Hello kids, how are you all? So today we will be starting with the new chapter, The Poor Ugly Duckling. This is chapter number 11. So this is again a very interesting story. So let's start, but before starting the chapter, what we will be doing? हम करेंगे warm up exercise. Match these animal riddles with their answers. How is an elephant like a tree? Both have trunks. Why does a cow moo? Why does it moo? Because of monkeys and donkeys. And the third one, which keys cannot open locks? Because its horns don't work. Is it clear, kids? So now starting with the story, once upon a time down an old farm lived a duck family. कौन रहता था old farm में? एक duck की family. Mother duck had been sitting on a batch of new eggs for some days. तो जो mother duck थी वो कहाँ बैठी हुई थी? Eggs के ऊपर बैठी हुई थी to hatch the eggs जो कि उसने lay किए थे. कुछ दिनों से बैठी हुई थी. One nice morning the eggs hatched out and popped 4 chirpy ducklings. तो एक दिन morning में क्या हुआ? Eggs hatch हो गए और उसमें से क्या निकले? 4 chirpy ducklings. But one egg was bigger than the rest. But एक और egg था जो कि बहुत बड़ा था दूसरे eggs के comparison में. And it didn't hatch. और वो hatch नहीं हुआ था. Mother duck couldn't remember laying that 5th egg. Mother duck को तो याद भी नहीं था कि उसने इतना बड़ा egg ले भी किया है. How did it get there? Tock tock. The little chick was pecking inside the shell. वो कैसे आया? Tock tock. और उसके अंदर से आवाज आई. The little chick was pecking inside his shell. तो एक छोटा सा chick अंदर से आवाज कर रहा था. Okay, is that clear? So you can see the image over here of the mother duck and the ducklings. Did I count the eggs correctly? अब वो क्या सोच रही थी? क्या मैंने eggs को ठीक से काउंट किया था? Mother duck wondered. Mother duck सोचने लगी कि अरे ये वाला egg कहाँ से आ गया? But before she had time to think about it, the last egg finally hatched. पर वो ठीक से सोच भी नहीं पाई थी और वो वाला जो लास्ट वाला egg था वो भी hatch हो गया. A strange looking duckling with grey feathers that should have been yellow in spite of grey gazed at her worried mother. और उसमें से क्या निकला? किस टाइप का डकलिंग? स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग. बहुत स्ट्रेंज था वो और डकलिंग से मैच ही नहीं करता था. उसके कैसे फेदर्स थे? ग्रे कलर के फेदर्स. और होने कैसे चाहिए थे? येलो. इन स्पाइट ऑफ ग्रे. और वो किसकी तरफ देख रहा था? वरिड मदर की तरफ. मदर बहुत वरिड थी कि अरे ये क्या आ गया. आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दिस ugly duckling can be mine. तो मदर को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतना बदसूरत सा डकलिंग मेरा कैसे हो सकता है. She said to herself. वो अपने आप में सोच ही रही थी. Shaking her hand as she looked at her last born. तो वो उस जो अभी पैदा हुआ था, अभी बॉर्न हुआ था, उसकी तरफ देखकर अपना हेड को हिला रही थी कि what exactly has happened. The ducklings grew quickly, but mother duck had a secret worry within herself. अब जो ducklings थे वो जल्दी बड़े होने लगे थे. But जो mother duckling थी उनको वो बहुत worried रहती थी. अंदर ही अंदर सोचती रहती थी. The grey duckling certainly wasn't pretty. तो जो grey duckling था वो बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं था. And since he ate far more than his brothers was outgrowing them. और अपने ब्रदर्स के कंपैरिजन में वो बहुत ज़्यादा खाता था तो वो उनसे बहुत बड़ा दिखता था. As the days went by, the poor ugly duckling became more and more unhappy. अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे तो जो बेचारा वो डकलिंग था वो बहुत उदास रहने लगा. His brothers didn't want to play with him. उसके ब्रदर्स उसके साथ नहीं खेलना चाहते थे. He was so ugly that all the others on the farm laughed at him. अब वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था तो फार्म पर और जो थे वो भी उस पर हंसते थे.
He felt sad and lonely while Mother Duck did her best not to hurt him. तो वो हमेशा उदास रहता था और अकेला रहता था, जबकि जो मदर डक थी वो बहुत ट्राई करती थी कि वो बिल्कुल हर्ट ना हो. Poor little ugly duckling, she would say, why are you so different from the others? वो क्या कहती थी कि अरे तुम इन सब से इतने डिफरेंट क्यों हो? And the ugly duckling felt worse than ever. अब ये सुनकर तो जो वो डकलिंग था उसको और भी ज़्यादा बुरा लगता था. He secretly wept at nights. वो रात में छुप छुप कर रोता था. He felt that nobody wanted him. अब उसको क्या लगने लगा था कि कोई भी उसको पसंद नहीं करता है. Nobody loves me, they all tease me. वो क्या बोलता था कि मुझे कोई भी पसंद नहीं करता है, सब मुझे टीज करते हैं, चिढ़ाते हैं. Why am I so different from my brothers? मैं इतना ज़्यादा अलग क्यों हूँ अपने brothers से? Then one day at sunrise he ran away from the farmyard. फिर एक दिन क्या हुआ? At sunrise, जैसे ही सूरज निकला वो अपने फार्म यार्ड से भाग गया. He stopped at a pond and began to question all the other birds. वो कहाँ पर रुका? वो पॉन्ड पर रुका और वहाँ पर काफ़ी सारे बर्ड्स थे, तो उनसे उसने क्वेश्चन किया. डू यू नो एनी डकलिंग विद ग्रे फेदर्स लाइक माइन? क्या तुमने कभी कोई ऐसा डकलिंग देखा है जिसके कि ग्रे फेदर्स हों मेरे जैसे? बट एवरीवन शुक देयर हेड्स. बट सब ने अपने हेड्स को शुक कर दिया कि नहीं नहीं, हमने तो नहीं देखा. वी डोंट नो एनी वन एज अगली एज यू. उन्होंने क्या बोला कि हमें कोई भी तुम्हारे जैसा अगली डकलिंग नहीं पता, हमने नहीं देखा. The ugly duckling did not lose heart, however, and kept on asking from others. उसने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं, और वो औरों से भी पूछता चला गया कि क्या तुमने कभी ऐसा कोई डकलिंग देखा है मेरे जैसा. He walked and walked as far as he could. वो चलता गया जितना वो चल सकता था और जितनी दूर जा सकता था. At dawn he found himself in a thick bed of reeds. और उसको फिर क्या मिला? कहाँ पहुँच गया वो? Thick bed of reeds, जहाँ पर लंबी लंबी घास थी. If nobody wants me, I will hide here forever. उसने क्या सोचा कि जब अगर किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर छुप कर रहूँगा. There was plenty of food and the duckling began to feel little happier. अब वहाँ पर क्या था? काफ़ी सारा खाना था और वो वहाँ पर छुप कर रह भी सकता था, तो डकलिंग को वहाँ पर थोड़ा अच्छा लगने लगा. Although he was lonely there. One day at sunrise he saw a flight of beautiful birds flying overhead. एक दिन सनराइज के टाइम पर उसने क्या देखा? एक फ्लाइट, बहुत सारे ब्यूटीफुल बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं. White with long cylinder necks. वो किस कलर के थे? वाइट कलर के, और उनकी नेक कैसी थी? सिलेंड्रिकल. येलो बीक्स एंड लार्ज विंग्स. उनकी बीक्स येलो थी और विंग्स बहुत बड़े बड़े थे. दे वर माइग्रेटिंग फ्रॉम साउथ. वो कहाँ से माइग्रेट कर रहे थे? साउथ डायरेक्शन से. माइग्रेटिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. If only I could look like them just for a day, said the duckling admiringly. उनको डकलिंग एडमायर कर रहा था, मीन्स देखकर बहुत खुश हो रहा था. तो उसने क्या सोचा कि काश मैं एक दिन के लिए इनके जैसा बन जाऊं. And the water in the reed bed froze. अब क्या हुआ? वेदर चेंज हुआ, विंटर सीजन आ गया, तो वहाँ पर क्या हो गया? वाटर इन द रीड बेड फ्रोज. वहाँ पर पानी था जहाँ पर रीड्स थी, जहाँ पर वो घास थी, वेयर दिस डकलिंग वॉज स्टेइंग. तो पानी बिल्कुल फ्रोजन हो गया. द पुअर डकलिंग लेफ्ट फ्रॉम टू सीक फूड इन द स्नो. जो बेचारा जो डकलिंग था वो गया, स्नो में भी गया कि कहीं से कुछ खाने के लिए मिल जाए. ही फॉल एंड ट्राइड टू द ग्राउंड, बट उसको कुछ भी नहीं मिला और वो बहुत थक गया. A farmer found him and put him in his big jacket pocket for the warmth. फिर एक फार्मर ने उसको देखा और जब देखा कि अरे इसकी क्या हालत है, तो उसको उठाया और अपनी जैकेट की पॉकेट में रख लिया कि इसको थोड़ी गर्माई मिलेगी. I will take
टेक हिम होम टू माई चिल्ड्रन. उसने क्या सोचा कि चलो मैं इसको घर लेकर चलता हूँ, मेरे बच्चे इसको देखेंगे. दे विल लुक आफ्टर हिम, वो इसका ध्यान रखेंगे. पुअर थिंग, ही इज फ्रोजन. उसको बहुत बुरा लगा कि ये कैसे फ्रीज हो गया है. द डकलिंग वॉज शावर्ड विद लव एंड केयर एट द फार्मर्स हाउस. शावर मीन्स बहुत सारी चीज़ें, प्यार देना. तो डकलिंग को फार्मर के घर पर बहुत प्यार मिला और उसकी बहुत केयर हुई. In this way, the ugly duckling was able to survive the bitterly cold winter. इस तरह से वो जो विंटर थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, वो उसकी पास हो गई बिकॉज उसको बहुत ज़्यादा केयर और अफेक्शन मिला फार्मर के घर पर. However, by springtime he had grown so big that the farmer decided. तो जब तक स्प्रिंग आया तब तक वो बहुत बड़ा हो चुका था. तो फार्मर ने क्या डिसाइड किया, आई विल सेट हिम फ्री बाय द पॉन्ड. मैं इसको पॉन्ड पर ही वापस छोड़ कर आता हूँ. दैट वॉज व्हेन द डकलिंग सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर एंड व्हाट ही सॉ, ही वॉज टोटली चेंज्ड. और जब वो पॉन्ड पर फार्मर ने उसको छोड़ा तो उसने अपना रिफ्लेक्शन वाटर में देखा. सी द पिक्चर ओवर हियर, ही इज सीइंग हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर. और वो अमेज था कि अरे मेरी तो पूरी की पूरी जो फीचर्स हैं, जो मेरी इमेज है, मेरी जो शक्ल है एकदम चेंज हो गई है, कि मैं टोटली चेंज हो गया हूँ. गुडनेस, हाउ आई हैव चेंज, आई हार्डली रिकॉग्नाइज माई सेल्फ. उसने कहा ओ माई गॉड, ये क्या हो गया, मैं तो अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल चेंज हो गया हूँ. द फ्लाइट ऑफ स्वैन्स विंग्ड नॉर्थ अगेन एंड ग्लाइडेड ऑन टू द पॉन्ड. फिर से वही, किसकी फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ स्वैन्स फिर से वहीं से पास हुई. When the duckling saw them, he realized that he was one of them. तो जब डकलिंग ने उनको देखा, स्वैन्स को, तो उसने देखा कि ओहो ये तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं और मैं इनके जैसा. He realized that he was one of them. ये मैं तो इन्हीं में से एक हूँ. And soon made friendship with them. और उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो गई. We are swans like you, they said warmly. तो जो और स्वैन्स थे उन्होंने डकलिंग को क्या बोला कि हम भी तो तुम्हारे जैसे ही स्वैन्स हैं. और इन दोनों में, उन सब में फ्रेंडशिप हो गई. Where have you been hiding? तुम इतने टाइम से कहाँ छुपे हुए थे? It's long story, replied the young swan. अब तो वो स्वैन बन गया था. Still astonished, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो astonished था, मीन्स हक्का बक्का कि ये क्या हो गया. तो उसने बोला कि ये बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर क्या बताऊँ. ही वॉज जस्ट थिंकिंग कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ. नाउ ही स्वैम मैजेस्टिकली विद हिज फेलो स्वैम्स. अब वो क्या कर रहा था, स्विमिंग कर रहा था अपने फेलो स्वैम्स के साथ. वन डे ही हर्ड चिल्ड्रन ऑन द रिवर बैंक सेइंग, look at that young swan, he is the finest of them all, he is so beautiful. तो एक दिन उसने क्या सुना रिवर बैंक पर कि कुछ बच्चे और वो कह रहे हैं कि देखो देखो इस स्वैन को देखो, ये सबसे सुंदर, सबसे अलग है, सबसे फाइन है सारे स्वैन्स को अगर हम देखें. एंड ही ऑलमोस्ट बर्स्ट विद हैप्पीनेस. और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. So that's all in the story. Kids, I hope you like the story, huh? It was a very nice story. It was adapted from the original story by Hans Christian Andersen. Okay kids, so now what we will be doing? We will be doing the word meanings, okay? Hatch, all of you know what is the meaning of hatch? Breaking up of an egg in order to bring out the young one. I think this thing is clear to all of you, isn't it? Gazed, looked steadily. ठीक है, एकदम से देखते रहना. Migrating, move from one place to another, as I have already told you. Froze, anything which turns into ice due to extreme cold. Survive, continue to live in harsh conditions also. The conditions which are not good, but फिर भी हम survive कर जाते हैं. Astonished, greatly surprised, कुछ भी समझ ना आना कि ये क्या हो रहा है. Ugly, not beautiful, repulsive. Admiringly means किसी को, किसी के बारे में अच्छा बोलना.
passingly. That this is the other word for admiringly. Showered. Showered means saying good things. Okay, showed here. Reflection, that is your image. Mirror में जो image दिखती है, that is the reflection or in the water. Now coming to the comprehension part, this you already know how to fill the OMR sheet. Darken the circle of the correct option in the OMR sheet. One egg was bigger than the rest. Obviously, it was bigger than the rest and it didn't hatch. The little chick was pecking inside his shell. कहाँ था वो? Shell के अंदर. Poor little, किस टाइप का डकलिंग था? ugly duckling. तभी तो वो परेशान था. He ran away from the farmyard. वो कहाँ से भाग गया? farmyard में रहता था. So he ran away because no one used to like him. He almost burst with happiness. उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया उसके साथ. How he has changed totally. Swan कैसे बन गया था वो? Next is fill in the blanks. The eggs hatched out and 4 chirpy ducklings. क्या हो गया? And what happened? The eggs hatched out and popped. What popped out? 4 chirpy ducklings. And popped 4 chirpy ducklings. Mother duck had a what mother duck had a secret worry. अंदर ही अंदर वो worried थी. Secret, why secret? Because she was not telling anyone. He felt that क्या लगा? उस duckling को क्या लगा? That nobody wanted him. कोई भी किसी को भी उसकी ज़रूरत नहीं है. Because he was ugly. He found himself in a thick bed of reeds. Lambi grass, that is reeds. I will take him home to my children. The farmer thought कि मैं कहाँ लेकर जाऊँगा इसको? अपने बच्चों के पास. CHILDREN. And he almost burst with happiness. बहुत खुश था, बहुत. Say if the given statement is true or false. A peahen family lived in an old farm. This is false. The ugly duckling felt worse than ever. This is true. He secretly wept in the morning. This is false. It was in the evening. Okay. Winter came and the water in the reed bed froze. This is again true. We are swamps like you. Yes, this is true. So that's all in this chapter, kids. Hope you enjoyed the chapter and understood the comprehension part. So have a nice day. See you. Goodbye and take care.